سے کنونشن کے بعد اور میرے بھائی جاوید مرتضی عباسی صاحب, پریزیڈنٹ پریس کلب راجہ ہارون صاحب, جنرل سیکرٹری راجہ منیر صاحب اور پریزیڈنٹ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ ثاقب صاحب, جنرل سیکرٹری ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ عاطف قیوم صاحب, اور میرے یہاں جتنے بھی صحافی بھائی بزرگ بہن بیٹھی ہیں, السلام علیکم. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک سلسلہ جاری ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیمی سطح کے اوپر جو تنظیمی کنونشن اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی اجلاس کی جو میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس کو ہزارہ ڈویژن سے شروع کیا اور کل یہاں ورکرز کنونشن سے اس کا آغاز ہوا ہے. ابھی آج صبح انہوں نے خواتین ونگ کے ساتھ, سوشل میڈیا ونگ کے ساتھ, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وہ میٹنگ چھوڑ کے جاوید مرتضی عباسی صاحب مجھے یہاں لے کر آئے ہیں اور وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کی میٹنگ جاری ہے اور میں نے ابھی موٹر وے ٹول پلازا پہ ان کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, خاص طور پر قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف صاحب کا ہزارہ ڈویژن کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے. جب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اقتدار میں آئی, ہمیشہ ہزارہ کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت صحت کارڈ کا آغاز ہوا تو وہ بھی خیبر پختونخوا کے صوبے سے محمد نواز شریف صاحب نے ایبٹ آباد سے 2014 میں کیا تھا. اسی طرح جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ہزارہ ڈویژن الیکٹرک کمپنی کا جو آغاز ہے اس کی انوگریشن کے لیے میں ان کے ساتھ آئی تھی ابھی کچھ ماہ پہلے. اور پھر ہزارہ موٹر وے اس جگہ کے لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, آپ سب کے لیے, ہزارہ کی عوام کے لیے ایک محمد نواز شریف کی محبت کا ثبوت ہے جو تحفہ انہوں نے ہزارہ موٹر وے کی صورت میں آپ لوگوں کو دیا. اس لیے لازوال محبت کی لازوال نشانیاں ہزارہ ڈویژن میں اور خیبر پختونخوا میں محمد نواز شریف صاحب کی موجود ہیں. لیکن جس وقت اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا موازنہ کیا جائے تو ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ادھر بھی اسی طرح کی میٹرو ہو, اورنج ٹرین ہو, ہسپتال ہو, PKLI ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر ہو, یونیورسٹیز ہوں, دانش سکولز ہوں, جس طرح پنجاب کو شہباز شریف صاحب نے سجایا. لیکن انشاءاللہ 10 سال ایک حکومت یہاں رہی ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ ہسپتال تو نیا بنا نہیں, لیکن ہسپتال میں ایک نیا کمرہ ہی دکھا دیں جو نیا بنا ہو, کوئی اسکول میں نیا کمرہ دکھا دیں جو بنا ہو. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو جو پریس کلبز کی یہاں بات ہوئی, میں لاسٹ ٹائم آئی تھی ایبٹ آباد پریس کلب میں, اس وقت بھی مرتضی جاوید عباسی صاحب مجھے لے کر آئے تھے اور تب بھی میں بہت زیادہ امپریس ہو کر گئی تھی کہ ایبٹ آباد میں اس طرح کا جو پریس کلب ہے وہ باقی پریس کلبز کے لیے ایک مثال ہے. جو آپ کی ڈیجیٹل لیب ہے, اگر آپ کا 70% کام ہو گیا تو آپ مجھے فوری طور پہ ریکوائرمنٹس بتائیں. انشاءاللہ آپ جب اسلام آباد میں حلف برداری کی تقریب کے لیے آئیں گے اس سے پہلے ہم یہ کام مکمل کرائیں گے. اس کے بعد جو آپ کا فرنیچر کی بات کی, اس کی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا اس وقت مشکل وقت ہے وفاقی حکومت کے اوپر اور پاکستان کی عوام بھی ایک مشکل سے گزر رہی ہے. جو پچھلے 4 سال کا وفاق میں اور 10 سال کی خیبر پختونخوا میں معاشی تباہی ہوئی ہے, اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کی فہرست بہت لمبی اور طویل ہے. تو لیکن جہاں تک کوشش ہو سکی, لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے ایک فنڈ اناؤنس کیا تھا جس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آ گیا تھا, کچھ باقی ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پورا کرتے ہیں. آپ کا جو فرنیچر کی فیزیبلٹی یا کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ لیتے آئیں اسلام آباد. مجھے مرتضی عباسی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے آنا ہے, آپ کے پاس جب ہو ٹائم, اگلے ہفتے آنا ہو, آپ نے مارچ کے پہلے ہفتے آنا ہو, آپ ضرور تشریف لائیں. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو یہاں وفاقی حکومت نے لیپ ٹاپ دیے تھے, تو ہم آپ کو انشاءاللہ آپ جب آئیں گے اسلام آباد میں آپ کو لیپ ٹاپ دے کر بھیجوں گی. اور یہ وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو ہر پریس کلب میں ہونی چاہیے. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو کی فیسلٹی ہے کہ نہیں.
क्रोमा वगैरह, माइक, लाइट्स वगैरह, हम आपको एबटाबाद प्रेस क्लब के लिए पूरे स्टूडियो का इक्विपमेंट भी देकर इंशाल्लाह इस्लामाबाद से भेजेंगे। जो हो सका वो बिल्कुल करेंगे। बाकी सहाफ़ी 4 साल मैंने ख़ुद आपके साथ सड़कों पे वक्त गुजारा है, मुझे उन मुश्किलात का भी अंदाज़ा है जो आपके साथ हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो सहाफ़ियों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बिल है वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को दे दिया गया था। वो हमने वापस दरख्वास्त की है कि हमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को दिया जाए ताकि हम उसके रूल्स बनाकर उसकी अमल दरामदी पर काम शुरू करें। तो वो काबीना के पास अगले हफ्ते अप्रूव हो जाएगा और वो बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास आ जाएगा, जिसके ऊपर आप लोगों की सिफारशात, आप लोगों की रिकमेंडेशंस के साथ उसके रूल्स के ऊपर काम हम इकट्ठे करेंगे। मैं आपके भी यहाँ से जो एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं साकिब खान साहब, मैं उनको उस कमेटी में डालूँगी ताकि आप लोगों की भी वहाँ तर्जुमानी हो और प्रेसिडेंट साहब की हमेशा हमारी रहनुमाई हासिल होगी। इसी तरह जो पेमरा है उसके अंदर हमने अमेंडमेंट की है और उसमें पहली दफ़ा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के ऊपर पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को नुमाइंदगी दी गई है और वो सिर्फ इसलिए कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो भी एड्रेस हों और जो इश्तिहारात हैं उनको हमने एक लिमिट दी है, मेरा ख़्याल है 4 माह की लिमिट है कि अगर उनको पेमेंट वफाकी हुकूमत कर देती है, जो हमें 3 माह लगते हैं जो पूरा प्रोसेस होता है एजी ऑफिस का, और आपको 4 माह के अंदर जो अदारा तनख्वाह नहीं देगा हमारी पेमेंट हो जाने के बाद, वो उनको हम इश्तिहारात नहीं देंगे। ये ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है, काबीना से पास हो चुकी है और अभी वो लेजिस्लेटिव का कैबिनेट कमेटी ऑफ कैबिनेट में है, जो कि हम जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में लेकर जा रहे हैं। तो ये तो मेरा ख़्याल है मैंने आपकी सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया है। ग्रांट जो आपकी है मेरे पास जो भी कोशिश मेरी हो सकी, जो बजट में से मैं, आप जब मार्च में आएंगे तो फिर उस पर हम बैठकर जो भी कोई बीच का रास्ता हुआ तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। अगर कोई 2 सवाल अगर आप लेना चाहते हैं। जी, कैप्टन सफदर साहब का बयान ARY पे मुझे कुछ इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से हम लोग बैक टू बैक मीटिंग्स में और उसी मीटिंग से मुझे उठाकर मिर्ज़ा बासी साहब लाए मीटिंग से और तो मुझे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट पता नहीं। इंशाल्लाह मैं देखकर इसका जवाब दूंगी। जी मैडम, IMF के साथ जो मुआहिदा है ये कब तक आपको तवक्को है कि कब तक ये मुआहिदा हो जाएगा? क्योंकि उस पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ डेडलॉक है, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? तो आपके पास नहीं, अभी वज़ीर ख़जाना साहब ने, इसहाक डार साहब ने एक बड़ी मुफस्सल प्रेस टॉक की है और उसकी नेगोशिएशंस के जितने पहलू हैं वो सारी डिटेल बात बताई है और नेगोशिएशन की फ़र्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मंडे से वर्चुअल जो, बिकॉज ये ऐसे ही होता है, नेगोशिएशन होती है, फिर वफद वापस जाता है, फिर उनका बोर्ड होता है, वहाँ उसकी फाइनलाइजेशन होती है और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है। और मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये मुआहिदा ज़रूर ये मौजूदा हुकूमत निगोशिएट कर रही है। जो मुआहिदा सस्पेंडेड था पिछली हुकूमत की, जो सब्सिडी थी मार्च में जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान दी थी, और वो मुआहिदा जो इमरान खान साहब ने दस्तखत किए थे, आपको याद होगा 2016 में जो मुआहिदा नवाज़ शरीफ साहब ने मुकम्मल किया था, उसमें ना आटे की कीमत बढ़ी थी, ना बिजली की कीमत बढ़ी थी, ना गैस की कीमत बढ़ी थी, ना रोटी की कीमत बढ़ी थी, वो तमाम चीज़ों, और ना चीनी की कीमत बढ़ी थी। 5 साल 52 रुपये रही और 5 साल 35 रुपये आटा रहा। तो ये निगोशिएट भी इमरान खान की टीम ने किया था, ये तोहफ़ा भी इमरान खान साहब का है। ये IMF का प्रोग्राम जो है ये अभी हम उसको निगोशिएट ज़रूर कर रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आवाम पे इसका कम से कम बोझ पड़े, और उम्मीद भी यही रखते हैं कि इंशाल्लाह जो कंक्लूड होगी निगोशिएशन वो कुछ इसी तरह होगी। लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि इस मुआहदे से जो इमरान खान साहब ने दस्तखत किए ना, हम उससे हट सकते हैं, और जो शराइत उन्होंने साइन किए जो कि मुआहदा की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मुआहदा सस्पेंडेड था और मुल्क को दिवालिये के नहज पर छोड़ गए थे। ये वही मुआहदा ना सिर्फ हमने दिवालिया होने से बचाया मुल्क को, बल्कि इस मुआहदे को दोबारा से शुरू करवाया, और अब हम इस स्टेज पे हैं कि इसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं। आखिरी सवाल कर लें, मैंने टोल प्लाजा पहुँचना बात जो सामने आई है जी, बात जो सामने आई है कि इन्होंने खुद इस्तीफ़े दिए थे
उस वक़्त ये भंगड़े डाल रहे थे, इस्तीफ़े देने के बाद आपको याद होगा उस वक़्त गालियाँ दे रहे थे, पार्लियामेंट को इम्पोर्टेड कह रहे थे और अपने पिछले दौर में पार्लियामेंट पे लानत भेजते थे। तो ये वही लोग हैं, सामने जो बात आई है कि ये वही लोग हैं जो हर बात पे यू टर्न लेते हैं। आपने एक पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफ़ा दिया है, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं, इसका भी तो जवाब देना। ये नहीं हो सकता कि आपकी मंशा के ऊपर पार्लियामेंट के भी ऑर्डर्स चलें, आपकी मंशा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चलें, हाई कोर्ट के ऑर्डर चलें और इलेक्शन कमीशन आपके मातहत नहीं है, वो आइन के मातहत है और वो उसके मुताबिक ही फैसले करता है। नवीद भाई आखिरी सवाल। नवीद भाई लास्ट। मैं आऊँगी दोबारा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैडम, आपने कहा है कि अवाम पर कम से कम बोझ पड़ेगा। गुज़िश्ता 4 दिनों में जो मशीर मजीद शामिल की हो और मेरा मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है ये आपकी जो। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसी के साथ मैं आपकी तरह तंजीमी, क्योंकि आप तंजीमी दौरे पे हैं, तंजीमी उससे बात करूंगा कि एबटाबाद में सरदार मेहताब साहब जो कल कन्वेंशन में भी शामिल नहीं हुए और गुज़िश्ता रोज उन्होंने जो एक बड़ी सख्त मौक़िफ़ तैयार किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वाज़िया तौर पे आज सुबह स्टेटमेंट दे चुकी हूँ कि जो मुशीर हैं वो बग़ैर किसी तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ये प्रो बोनो उन्होंने पहले ही दरख्वास्त की थी और आज प्राइम मिनिस्टर ने कल उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। जो नाम आज उस फहरिस्त में दे दिए गए हैं 5 वो और 14 नाम आज दिए हैं। और दूसरी बात आपने की तंजीमी लिहाज की, तो जो सरदार फरीद साहब हैं वो कल कन्वेंशन में भी थे और आज हमारे जो तंजीमी इजलास में और जो मीटिंग थी वहाँ भी मौजूद थे। और कोई सवाल? जी आपको शीट दें। जी 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 तैर महमूद साहब आप प्लीज। IMF के पास जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए। हम नहीं गए, अगले मैं देती हूँ। नहीं मैडम, हमारी हुकूमत, मेरे मुराद हमारी हुकूमत है IMF के पास जा रही है। उससे बेहतर IMF के पास जाने से बेहतर नहीं है कि हमारा जो सेकंड अल्टरनेटिव ब्लॉक आप बन रहा है, हम उसकी तरफ जाएं, वहाँ से हमें सस्ती चीज़ें बेहतर मिलेंगी। IMF के पास हमारी कोalition हुकूमत नहीं जा रही। IMF के पास इमरान खान साहब गए थे और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था आपने उसको कंक्लूड करना होता है। ये गवर्नमेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है और इससे आप निकल नहीं सकते। दूसरा ये कि हम इंशाल्लाह हमने पहले भी कंक्लूड किया था IMF का प्रोग्राम। पहली दफ़ा मुल्क की तारीख़ में मोहम्मद नवाज शरीफ ने IMF का प्रोग्राम कंक्लूड किया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस IMF के प्रोग्राम को कंक्लूड भी करें और इस कोशिश के साथ करें कि आवाम पे कम से कम बोझ हो। और एक और बात जो आपने की आखिरी, जी वो तो ये पहले कंक्लूड हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह इस मुल्क की जो मईशत है उसको खुद इन्हिसारी के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जी मेरी यहाँ पे बीइंग अ सिटीजन ऑफ एबटाबाद एक रिक्वेस्ट होगी कि वफाक में आपकी हुकूमत है, मुर्तज़ा साहब जानते हैं कि हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है पहाड़ की चोटी पर है और शहर से बहुत एरिया में उसको बनाया गया। बिल्डिंग उनकी अपनी ज़ाती ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा वो मसला है कि गरीब लोगों को, आम लोगों को। मैंने सुना है पिछली हुकूमत ने शिफ्ट किया था, वो खुद भी पहाड़ की चोटी पे रहते थे, पासपोर्ट ऑफिस भी वहाँ ले गए थे। इंशाल्लाह हम मैं आपकी इंटीरियर मिनिस्टर को ये पहुँचाऊंगी भी।